Hello student, how are you? I hope all you are fine and wealthy at your home. I am your English teacher from Jasdan Public School. Now I am starting English grammar in standard 5th chapter 1 is sentences. Let's start English grammar in topic 1 sentences. Now sentences, how make a sentences. So sentences make a 4 types of sentence. First of all, understand, my father is a doctor. My father is a doctor. Is your father a doctor? Question mark. Go to the doctor. Full stop. Oh, what a wonderful doctor your father is! Exclamatory mark. Let's learn how make a sentences in briefly and describing a sentences types. First of all, a sentence is a group of words that express a thought. There are 4 types of sentences. Now make a sentences in types of sentence. How make a sentence? A simple sentence states declarative, states a fact or gives information. It is positive or negative. Declarative sentences in which two parts of sentence. First is positive and second is negative. कोई भी हम लोगों को स्टेटमेंट दे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बन जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. Second is an interrogative sentence. Ask a question like a WH question. What is a WH question? Now started in learn to who, what, which, whom, whose, why, वो सब है, वो WH क्वेश्चन है. एंड लास्ट में जो सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ कमांड एंड एक्सप्रेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट. नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द बिलोंग टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट, डिपेंडेड ऑन टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट. अगर कोई हम लोगों को ऑर्डर दे या रिक्वेस्ट करे तो वो सेंटेंसेस बन जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. अगर हम लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता हो सेंटेंस में तो वो बन जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. नाउ चेक ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, second is interrogative sentence, third is imperative sentence, and fourth is exclamatory sentence. Now understand which types of sentences. Let's continue in a briefly of exercise. Exercise में question 1, rearrange this word to from sentences. यहाँ पे हम लोगों को पूरा जो sentences है वो rearrange बनाना है. rearrange करके पूरा जो सेंटेंस है वो एप्रोप्रिएट जगह पे रखना है. जैसे कि कब नाउन आएगा, वर्ब आएगा एंड आर्टिकल्स, वो पूरा सेंटेंसेस वैसे रीअरेंज करना है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है फैमिली इंसेक्ट्स, मॉथ्स, बटरफ्लाइज एंड आर मेंबर्स सेम ऑफ द. ये पूरा सेंटेंस है वो नाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वो सब सेंटेंस उलट पुलट पूरा करके दिया है. उसको हम लोगों को रीअरेंज करना है. तो लेट्स टेक अ आंसर. फर्स्ट आंसर इज द इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज आर मॉथ सेम ऑफ द मेंबर्स. सेकंड इज बटरफ्लाइज देयर ऑफ स्पेसीज आर नियरली 19,000. And this answer is their butterflies are nearly 19,000 species. Third is 5 butterflies million first ago years appeared Earth on. Answer is 5 butterflies first year ago appeared on Earth. Fourth is have butterflies wings long to long match their bodies. Answer is butterflies have wings long to long match their bodies. Fifth is cooler
monarch it like is night to fly at night when the answer is when the cooler monarch it is like night fly at night. 6 is migration monarch during can 1030 km travel a day. Answer is monarch can migration during 1030 km travel a day. 7th is literature butterflies art have seen subject of a and. Answer is butterflies have been a subject of art and literature. तो हमने देखा कि ये 7 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं वो पूरे उलट पुलट करके दिए गए हैं जो हमने बनाया है रीअरेंज करके. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे हम लोगों को हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इस वजह से जो नीचे 1 से लेके 10 तक की ब्लैंक्स दी गई है वो हम लोगों को राइट करना है. आइए देखते हैं हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में है व्हाट, अमेजिंग, हरी, ओ, ए, हे, हुर्रे, वेल, अल्लाश एंड वाओ. फर्स्ट ब्लैंक इज ब्लैंक्स यू आर सो टिमिड सेड द क्यूब्स टू द बेबी बॉक्स. तो जैसे कि हम लोगों को कोई एक्सप्रेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है वो है wow, you are so timid, said the cube to the baby box. Second blank is blank, I have an idea. जैसे कि कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, तो hey, I have an idea. Third is blank, he gasped as he started at his beard in the mirror. तो बोला रहे हैं hooray, he gasped as he started at his beard in the mirror. Fourth blank is blank, you have found it, cried Tony. Alas, you have found it, cried Tony. Fifth is blank, help me pull here. तो कैसे साउंड करता है? Hurry, help me pull here. Sixth is blank, I am sure that can be arranged. Amazing, I am sure that can be arranged. Seventh is blank, King Crackle corns coming. So, well, King Crackle's corns coming. 8 is blank, Fox, what happened to you? Oh, Fox, what happened to you? 9th is blank, a beautiful sight. तो हम लोग बोलते हैं what a beautiful sight. 10th is blank, we lost the game. We lost the game. तो हमने देखी 1 से लेके 10 तक के जो भी ब्लैंक्स दिए गई है वो सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को बिलोंग करते हैं. जस्ट बिकॉज एक्सक्लामेटरी मार्क एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है. नाउ लेट्स continue topic 2. Articles. You have all of no articles. How make articles? तो articles कितने होते हैं? तो a, n और the 3 types of articles. तो a कहाँ पे रखते हैं? तो जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं वहाँ पे a रखते हैं. एंड n, तो n कहाँ पे रखते हैं? तो जो वोवेल्स हो, मीनिंग की ए, ई, आई, ओ, यू, वोवेल्स हो, वोवेल्स पे एन लगेगा. एंड बाकी जो वोवेल्स के बिना जो लेटर बचते हैं उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट. एंड द, तो कोई भी प्लेसेस हो या थिंग हो या पर्सन की बात करें तो वहां पे ध लगेगा. नाउ लेट्स कंटिन्यू एज अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल है अ फ्रूट स्टॉल. फ्रूट स्टॉल, तो फ्रूट स्टॉल में 1 fruit of orange and 1 fruit of mango. ऑरेंज यानी कि हम लोग ऑरेंज यानी कि वोवेल से साउंड करता है तो एन ऑरेंज. एंड मैंगो यानी कि कॉन्सोनेंट से साउंड करता है तो अ मैंगो.
सेकंड थिंग इज अ ब्राइट डे, ब्राइट डे यानी कि अ शनी डे एंड ऑर्डिनरी डे। शनि डे यानी कि वार्मर डे, तो एस से साउंड किया है यानी कि कॉन्सोनेंट से साउंड किया है, इस वजह से ए। एंड ऑर्डिनरी डे, ऑर्डिनरी यानी कि ओ से साउंड किया है यानी कि वोवेल से साउंड किया है, तो इस वजह से एन ऑर्डिनरी डे। थर्ड थिंग इज द वेजिटेबल शॉप, तो वेजिटेबल्स में है टोमेटोज एंड पम्पकिन्स। जो टोमेटो एंड पम्पकिन्स है वो दोनों जो प्लूरल नाउन में दिखाया गया है वो दोनों प्लूरल है, इस वजह से ध लगेगा। द वेजिटेबल शॉप, तो vegetables in two parts of tomatoes and second is pumpkins, तो tomatoes are plural and pumpkins are two plural, इस वजह से प्लूरल है, इस वजह से क्या आएगा, ध आएगा। नाउ डिस्कस, लेट्स लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, we use a article before single countable nouns beginning with consonant sound। अगर सिंगल काउंटेबल नाउन्स हो, बिगिनिंग जो होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो वहां पे अ लगेगा। सेकंड थिंग इज वी यूज आर्टिकल एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड। जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो बट बिगिनिंग कहाँ से होता है, तो वोवेल साउंड से होता है। जैसे कि वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, वोवेल साउंड होता है, तो ब्लैंक्स के बिफोर जो वर्ड होता है वहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। एंड थर्ड थिंग इज वी यूज आर्टिकल द विथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन व्हेन समथिंग इज मेंशन्ड अ सेकंड टाइम। अगर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन बोथ ऑफ आते हैं एंड जो समथिंग यानी कि कोई चीज या उसको मेंशन किया जाता है सेकंड टाइम, तो वहां पे ध लगेगा। नाउ डिस्कस एट एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन और कहाँ पे ध आएगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स ए एंड द। ए एंड द से हम लोगों को ब्लैंक्स को फिल अप करना है। फर्स्ट ब्लैंक इज विपिन शो ब्लैंक zebra in blank cage in blank zoo। zoo फर्स्ट ऑफ ऑल जिब्रा यानी कि हम लोगों ने जो साउंड किया है वो कॉन्सोनेंट साउंड किया है, इस वजह से ए आएगा। एंड केज इन द जू यानी कि केज है वो भी प्लेस है एंड जू है वो भी प्लेस है, तो इस वजह से ध आएगा। नाउ सेकंड ब्लैंक्स इज आई गेव ब्लैंक्स बनाना टू ब्लैंक्स मंकी। बनाना है वो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट साउंड किया, इस वजह से ए एंड मंकी की बात की है, इस वजह से ध आएगा। थर्ड ब्लैंक इज अ गर्ल हु sang द ब्लैंक स्कूल फंक्शन इज ऑल्सो ब्लैंक गुड डांसर। तो गर्ल है जो है कॉन्सोनेंट साउंड द अ एंड स्कूल यानी कि प्लेस की बात की गई है, इस वजह से ध आएगा। एंड गुड डांसर इस वजह से ए आएगा। फोर्थ इज ब्लैंक ऑस्ट्रिच इज एज टॉल एज ब्लैंक मैन। ऑस्ट्रिच यानी कि ओ यानी कि वोवेल्स एंड हम लोगों ने वोवेल साउंड किया है, इस वजह से एन आएगा। एंड मैन की बात की है तो वहां पे ध लगेगा। फिफ्थ इज आई नो द वे टू ब्लैंक पोस्ट ऑफिस। तो ब्लैंक यानी कि ध पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस की बात की है यानी कि प्लेस की बात की है, तो ध लगेगा। सिक्स्थ इज ब्लैंक सन इज ब्लैंक बॉल ऑफ फायर। ध सन मून स्टार की बात करें तो ध लगेगा, तो ध सन इज एन ह्यूज बॉल ऑफ फायर। यहाँ पे ह्यूज यानी कि जो एच दिखाया गया है पर एच है जो साइलेंट वर्ड है, इस वजह से एन लगेगा। द सन इज एन ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सेवंथ इज सुमित इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास। टोलेस्ट यानी कि डिग्री का यूज किया गया है, टोलेस्ट तो डिग्री का यूज किया गया है एंड सुमित की बात की है तो ध लगेगा। सुमित इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास। 8 इज
ब्लैंक रोजेज इन ब्लैंक गार्डन लुक कलरफुल। रोज यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड किया है तो ए लगेगा। एंड गार्डन, गार्डन यानी कि प्लेस की बात की है तो वहां पे ध लगेगा। और रोजेज इन द गार्डन लुक कलरफुल। 9th is what blank amazing experience it was to see blank tiger in blank wild। तो यहाँ पे अमेजिंग यानी कि वोवेल साउंड किया है तो एन आएगा। एंड टाइगर है तो ए आएगा। एंड वाइल्ड है तो ध आएगा। What an amazing experience it was to see a tiger in the wild। 10th is Rohan is blank honest and hardworking boy। He has blank pleasing smile। रोहन इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हम लोग होनेस्ट नहीं साउंड करते, हम लोग ऑनेस्ट साउंड करता है। ऑनेस्ट यानी कि जो वोवेल्स की बात की गई है यानी कि एन। एंड प्लेजिंग स्माइल, प्लेजिंग स्माइल यानी कि ए। तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक है आर्टिकल्स एंड सेंटेंसेस, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड to my things and my concept। Now your concept is clear and thank you for listening to me। Have a safe day।